السلام علیکم، میں ہوں امان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریم ہنگر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں جا رہا ہوں موٹر سائیکل پہ جڑا مالا سے ہوتا ہوا بچے کی موڑ کھنڈا، بھائی پھیرو، چونیاں، وہاں سے آگے ایک جگہ ہے کھڈیاں، وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پاپولر کاشت کیا ہوا ہے، تو ان کا وہ پاپولر کا جنگل دیکھنا ہے، نرسری دیکھنی ہے، تو چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا سفر۔ آج میں موجود ہوں کھڈیاں خاص، تحصیل و ضلع قصور۔ ناظرین، یہ پاپولر کی نرسری آپ دیکھ رہے ہیں۔ 1 ایکڑ پر مشتمل یہ نرسری، جس میں 40,000 سے زیادہ پودے موجود ہیں۔ اس نرسری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ایک حصے پر ہے اٹالین وائٹ پاپولر، دوسرے میں ہے ڈیلٹا اور تیسرے میں ایور گرین کاشت کیا گیا ہے۔ کاشتکار محمد حفیظ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ کو ان سے بھی ملوائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، آپ نے کوئی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا، تاکہ ساری معلومات صحیح طریقے سے آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ یہ ہے جی ڈیلٹا D48 اس کی پہچان ذرا نزدیک کر کے کریں۔ اس کی یہ نشانی ہے، اس کی یہ الٹا یو بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی خاص پہچان ہے۔ یہ ڈیلٹا D48 یہ ڈیلٹا D48 ہے، جس طرح حفیظ بھائی نے بتایا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے تنے کے اوپر الٹا یو بنا ہوگا، یہ شکل بنی ہوتی ہے اس کی۔ آگے ہم آپ کو اٹالین دکھاتے ہیں۔ یہ پاپولر کی نرسری ہے، 2-3 قسمیں پاپولر کی یہاں پہ لگائی گئی ہیں نرسری کی، اور تقریباً 40,000 پودا جو ہے 1 ایکڑ میں وہ یہاں پہ موجود ہے۔ یہ اٹالین وائٹ ہے۔ یہ 1 ایکڑ میں پاپولر کی نرسری ہے، اور اب جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں پاپولر کا سیزن ہے، پاپولر کی فصل کاشت کی جا رہی ہے پورے پاکستان میں۔ پاپولر کی کاشت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے اس وقت۔ میرے ساتھ کاشتکار ہیں حفیظ خان صاحب، جیسا کہ یہ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان کی نرسری ہے۔ باقی ڈیٹیل جو ہے وہ حفیظ خان صاحب سے پوچھتے ہیں نرسری کے متعلق۔ ہر قسم جو ہے وہ انہوں نے تیار کی ہوئی ہے۔ جو 2 دوست نرسری حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاپولر کی کاشت کرنا چاہتے ہیں، اس سیزن میں اپنی زمین کو کارآمد بنانا چاہتے ہیں اور وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان سے حفیظ خان صاحب سے نرسری یہاں سے منگوا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور ایک اچھا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ابھی ان سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کو اس کے متعلق بتاتے ہیں اور اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام عبدالحفیظ خان ہے اور میرا ڈسٹرکٹ قصور سے تعلق ہے، اور کھڈیاں خاص کے ساتھ جگیاں ہٹھاڑ میں ہماری زمین ہے۔ تو ہم نے یہ 1 ایکڑ میں تقریباً 40,000 پودا لگایا ہے۔ لائن سے لائن 2 فٹ اور پودے سے پودا جو ہے نا وہ 6, 7, 8 انچ تک لگا ہوا ہے۔ تو یہ نرسری بھرپور طریقے سے تیار ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 70% 80% پودا جو ہے نا وہ A گریڈ کا نکل رہا ہے۔ تو ہمارے پاس اٹالین وائٹ، ڈیلٹا اور ایور گرین کے پودے کھڑے ہوئے ہیں۔ جس بھائی کو چاہیے وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنی زمینوں کو کارآمد بنائیں، اور جو لوگ ابراڈ میں رہ رہے ہیں ان کی زمینیں ہیں بیکار پڑی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی زمینوں پہ یہ لگا کے بھول جائیں، 4 سال بعد آئیں اور 30-35 لاکھ روپے لے کے گھر کو جائیں۔ حفیظ صاحب ہمیں بتائیے کہ اس پودے کی عمر کیا ہے؟ یہ جو نرسری ہے یہ 1 سال کا پودا ہے جی، اور اس کی ہائٹ تقریباً 12 سے 14 فٹ پہ ہے۔ یہ نرسری کا پودا ہے یہ، اور یہ زمین میں جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور یہ پودے شفٹنگ کے لیے یہ سیزن شروع ہے تقریباً
30 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पे हम इसी एक पौधे की बात करते हैं, ये एक पौधा हम अभी इस दिसंबर में काश्त करते हैं, तो 5 साल के बाद यही पौधा कितने में मार्केट में सेल होगा? ये जी अगर इटालियन वाइट लगाते हैं तो पूरे 5 साल में पूरी इसकी खाद बीज का ध्यान रखा जाए तो पूरी केयर करें तो ये 5 साल में इटालियन वाइट तैयार होता है। अगर हम कम से कम एवरेज भी लगाएं तो 3500 का तो आराम से जाता है। और डेल्टा जो है वो 4 साल में उसकी ग्रोथ है, वो आप 3 साल में शटरिंग भी दे सकते हैं। तो शटरिंग में भी देते हैं तो सालाना जो है ना आपका कम अज़ कम 4 लाख रुपया सालाना बनता है और 3 साल की एवरेज निकाल लें 12 से 15 लाख रुपए में बिक जाएगा। थैंक यू। ये आप इटालियन वाइट के पौधे देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सीधे और लंबाई में भी बहुत उम्दा। पिछले साल 6 या 7 इंच की कलम लगाई गई थी और आज इसकी देखें मोटाई कितनी है। ये सेहतमंद है और जो बाहर की लाइन है वो ज़्यादा मोटी है और जो अंदर पौधे हैं वो ज़रा नॉर्मल हैं, जो हमने शिफ्ट करने हैं। ये इटालियन वाइट है। हाँ, इटालियन वाइट। और शिफ्ट करने के लिए हमेशा 9 से 10 फीट से बड़ा पौधा लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा खुराक चाहिए होगी उसको और उसकी जड़ें कमज़ोर होंगी तो इतनी ग्रोथ नहीं करेगा। हफीज़ भाई, अगर कोई दोस्त नर्सरी लेना चाहता है यहाँ से, तो एक आइडिया बता दीजिएगा प्राइस के हिसाब से कि एक पौधा जो है वो कौन सी नस्ल का पौधा जो है वो कितने में मिलेगा? भाई बात ये है कि मार्केट में बहुत से लोग ये नर्सरी बना के बेच रहे हैं, तो इसका ये है कि अगर आपने ए ग्रेड का पौधा लेना है, मसलन जैसे ये पौधा खड़ा हुआ है, ये 12 फीट पे पौधा है और ये इटालियन वाइट अगर प्योर लेना चाहेंगे तो फिर ये आपको 30 रुपये से कम नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सेहतमंद पौधा है। अगर इसकी कलमें भी निकाली जाएँ तो ये सेहतमंद कलमें होंगी और कलमें भी हमेशा सेहतमंद पौधे से ही बनानी चाहिए, ना कि हम शाखें उतार के जो है वो कलमें बनाएं। बिल्कुल सही हो गया जनाब। चलते हैं, हम आपको एवरग्रीन दिखाते हैं और उसकी एवरग्रीन की खसूसियत भी पूछते हैं हफीज़ साहब से कि और ये किस इलाके में काश्त किया जा सकता है। जी हफीज़ साहब। सर इसकी अहमियत ये है कि ये 12 महीने ग्रोथ करता है, सिर्फ जनवरी के महीने में ग्रोथ नहीं करता। इसके चूँकि पत्ते नहीं झड़ते ना, तो इसलिए इसकी ग्रोथ पूरा साल चलती है और ये अंदर से बिल्कुल वाइट है और ये दूसरे पौधों की निस्बत जल्दी तैयार हो जाता है, 3 साल में भी तैयार हो सकता है। और 3 साल का पौधा आपको कम से कम 3000 तो देगा ना। अब 1 एकड़ में 1200 पौधा खड़ा हुआ हो तो 3000 के हिसाब से 36 लाख का बनता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो चलो 36 का नहीं तो 20 लाख ही लगा लें आप, तो 1 साल में 5 लाख कौन सी ज़मीन आपको 1 एकड़ देगी? ये हमें समझा दें कि कोई 1 एकड़ 5 लाख सालाना देता हो। इसकी खसूसियात यही हैं कि ये पत्ता नहीं झाड़ता, पूरा साल जो है वो ग्रोथ करता है और इसका इटालियन वाइट की तरह ही वाइट कलर होता है। और जिस तरह के ये डिस्ट्रिक्ट कसूर का इलाका है, इसमें तमाम पौधे चल जाते हैं, लेकिन गर्म मरतूब इलाकों में हमेशा जो है ना वो डेल्टा को ही रिकमेंड करें, क्योंकि उसमें गर्मी बर्दाश्त करने की ताकत होती है और उसकी ग्रोथ रेट भी अच्छा है। ये मोटी कलम लगाई थी, इतनी मोटी कलम है ये। और इसकी वाइटनेस हाथों को लगती है। जितना अब ये यहाँ पे पौधा पहुँच चुका है ना, तकरीबन 5 फीट हमारे कद के मुताबिक, इतनी मोटी कलम ये 2 फीट की लगाई। ये 2 फीट की कलम थी। कब लगाई थी ये पिछले साल की है, मार्च की, सॉरी फरवरी की, यानी 1 साल पहले तकरीबन। हाँ जी। अब इसकी मोटाई देख लें आप, 10-11 माह पहले ये लगाई गई थी। अगर इसको फासला मिला हुआ होता। और ये देखें सीधा तीर की तरह सीधा पौधा जा रहा है। देखें हाइट है इसकी तकरीबन। एवरग्रीन है ये। पंजाबी च नहीं कहते कि रोजाना 7 वार आते हैं, इन्हों भी डेली 7 वार आते हैं। एवरग्रीन भाईजान, एवरग्रीन काश करो तो मज़े लवो। की ख्याल है? एवरग्रीन की ये पहचान भी आपको बता दी जाए। ये इसकी बर्ड्स मोटी मोटी आपको नजर आएंगी, ये देखें, ये देखें,
इसी तरह ऊपर। ये इसकी आंखें जो है ना, अब ये जो ये पौधे निकलते ही मोटी होना शुरू हो जाती हैं। हैं, ये पौधे 5 फीट के हमने डेल्टा के लगाए थे। ये पूरी लाइन पे है ना, ये 4-4 5-5 फीट के पौधे इतने इतने बड़े लगाए थे हमने, ये वाले इतने इतने। अब इसकी ये ग्रोथ है, ये 11वें महीने में खड़ा है। ये डेल्टा है, ये 5 फीट वाला पौधा है। आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी धरती का ये फ़र्क है। क्या बात है। अब हमने इसको खाद वगैरह नहीं दी, किसी बस एक पौधे को खाद नहीं दी, सही। पानी भी जो वही नॉर्मल, पानी नॉर्मली पानी दिया, जो आम फसलों को जिस तरह दिया जाता है उसी तरह। नेपियर CO5 है जी। हफीज़ भाई अपना मशवरा भी दें हमारे नाज़रीन को। भाई मेरी तो राय यही है कि पूरे एकड़ में जंगल लगाया जाए, बन्नों खालों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लगाना ही है तो फिर ये है कि 200 फीट की उसकी चौड़ाई लंबाई होती है 1 एकड़ की, तो उस पर 15-20 पौधे लगा दें, एक शौक़ पूरा कर लें अपना। लेकिन अगर आप कमाई करना चाहते हैं तो फिर पूरा जंगल ही लगाएं मेरे भाई। और 1 एकड़ से कितने कमाएं 5 साल बाद? नहीं, 35 लाख की हमारी तो वो जो कैलकुलेशन है ना, 35-36 लाख आ रही है। बाकी अल्लाह जिसको नवाजे। इसकी खाद और पानी और दूसरी अगर अद्वियात को देनी होती हैं तो उसके मतलब थोड़ा सा बता दें। भाई अगर आपने फसल बोई है, अगर आपने चावल या गंदम या कुछ भी लगाते हैं तो उसको खाद तो देते हैं, पानी भी प्रॉपर देते हैं। तो अगर इसको आप फसल के तौर पे लगा रहे हैं तो कम से कम 6 खादें इसको 1 साल में दें। बाकी ये है कि क्लोरीपेरीफास्ट जो है वो दीमक कंट्रोल के लिए है, तो वो आपको लगानी पड़ेगी सालाना। तो वो इसमें 1000-2000 का खर्चा आता है, तो कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। कितने ऐसे बाद? ये साल में 1 दफ़ा क्लोरी डाल दें आप, तो इससे ये है कि दीमक और जो है ना कीड़े कूड़े का जो हमला नहीं होता है। बहुत शुक्रिया। ये पॉपुलर देख रहे हैं मेरे पीछे आप, ये जंगल लगाया है। हफीज़ साहब से पूछते हैं कि ये कौन सी क्वालिटी है पॉपुलर की, किस नाम से ये जानी जाती है, यानी किस नाम से मशहूर है? क्योंकि पॉपुलर की बहुत सी अक़साम हैं, मुख्तलिफ़ इसकी किस्में हैं, लोग काश्त करते हैं। कोई किसी मकसद के लिए करता है, कुछ तो तकरीबन 3 साल की उम्र के बाद इसको जो है वो काट लेते हैं और उसका यूज़ कुछ और है। कुछ लोग जो है वो पूरा दरख्त मतलब 5 साल तक या 4.5 साल तक जो है वो वेट करते हैं ताकि वो पूरा तनावर दरख्त बन जाए, फिर वो सेल आउट करते हैं मार्केट में। तो हफीज़ साहब से इसकी मालूमात देते हैं। ये जंगल इन्होंने लगाया है, ये 4x4 के फासले पे है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइनों में फासला भी 4 फीट है और पौधे से पौधे का भी 4 फीट है। अच्छा, हमें कुछ बताइएगा, आपने ये जो जंगल लगाया है ये कौन सी किस्म है और ये फासले का भी बता दें कि कौन सा फासला है, और आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को जो पॉपुलर की काश्त करना चाहते हैं? भाई जो शटरिंग के लिए लगाना चाहते हैं ना, वो तो 4x4 पे लगा लें। ये है कि बीच में इंटर क्रॉपिंग नहीं होगी। फिर दूसरा ये है कि अगर हमने इसको प्लाईवुड फैक्ट्री को देना है, माचिस वालों को देना है, तो फिर हमें लाइन से लाइन 12 रखना पड़ेगा और पौधे से पौधा बेशक आप 4 फीट रख लें, उस हिसाब से आपके तकरीबन 1 एकड़ में 1100 पौधा लगेगा। सही है। और इसमें आप फसल भी ले सकते हैं, पट्ठे ले सकते हैं, कोई भी छोटी फसल ले सकते हैं आप। लेकिन 2 साल से ज़्यादा उसमें भी नहीं ले सकते क्योंकि रोशनी का प्रॉपर वो नहीं आएगी और हवादारी भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और हमारे इधर जो है वो ज़्यादा गर्म मरतूब हवा है, तो हमें डेल्टा ही लगाना चाहिए क्योंकि उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। बेशक रेट 100 रुपया इटालियन से कम है, लेकिन इसकी उतनी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। जो हमने इटालियन को 5 साल रखना है तो हम डेल्टा को 4 साल में उड़ा सकते हैं। ठीक है। हफीज़ साहब, इन पौधों की उम्र कितनी हो गई है? ये इन पौधों की उम्र 20 माह हो गई है जी। ये हमने 1 साल का पौधा लगाया था, तो आज लगाने के बाद जो है ना, आज 20-21 माह हो गए। आज ये दिसंबर की 15 तारीख हो गई है। तो आपका क्या इरादा है, कहाँ तक जो है इनको लेके चलेंगे? कितने साल के पौधे जो हैं वो आप काटेंगे? ये जनाब हमारा इरादा तो है तकरीबन 5 साल के लिए, लेकिन अब हमें ये इसको लगा गलत बैठे हैं। अब हमने इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए हमें ऐसे एक लाइन निकालनी पड़ेगी ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ।
یہ دیکھیں بالکل سیدھی لائنیں، لیکن حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فاصلہ ہے یہ پودوں کی بڑھوتری کے لیے، تناور درخت بننے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ فاصلہ انہوں نے کم رکھا ہوا ہے. 4x4 فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. پودے سے پودے کا فاصلہ تو 4 فٹ تک ٹھیک ہے، لیکن لائن ٹو لائن 4 فٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے دو نقصانات ہیں. ایک تو آپ کوئی اور کراپ حاصل نہیں کر سکتے، کوئی اور فصل اس میں نہیں لگا سکتے. دوسرا، درخت بھی جو ہیں وہ صحیح موٹے نہیں ہوتے، صحیح تناور درخت نہیں بنتے. شٹرنگ کے لیے جن کو ٹیکیں کہتے ہیں ان کے لیے تو یہ ٹھیک ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ 1 سال اور چلے گی حفیظ صاحب، تو وہ آپ شٹرنگ کا یوز کر سکتے ہیں. لائن سے لائن نکال دیں گے، وہ شٹرنگ میں یوز ہوگی. ہاں جی، وہ شٹرنگ میں اگلے سال جائے گی. ہاں. ابھی اس کی موٹائی کتنی ہوگی؟ ابھی دیکھ رہے ہیں جی، ہم تو اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایسے، یہ ہمارے ہاتھ کے برابر ہو رہا ہے. یعنی کہ اگلے سال اس میں سے ایک پودے میں سے ایک پودے سے 2 ٹیکیں نکل سکتی ہیں نیکسٹ ایئر. اتنی موٹائی اس کی ہو گئی ہے نیکسٹ ایئر. تو آپ کا ارادہ ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے ایک لائن نکلوا دیں، ایک لائن نکلوا لیں گے، اور پھر اس کا فاصلہ ہو جائے گا 8x4 ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر ہم اپنی بڑی گروتھ کے لیے، بڑے کرنے کے لیے رکھیں گے. صحیح ہے. ناظرین، اگر آپ پاپولر کاشت کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی منافع بخش فصل ہے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پودے سے پودے کا فاصلہ 4 فٹ اور لائن ٹو لائن فاصلہ جو ہے وہ 12 فٹ رکھیں، اور اس میں اپنی دوسری فصلیں بھی کاشت کریں. اس طرح آپ کی زمین جو ہے وہ 2 گنا پروفٹ آپ کو دے گی. اس جگہ پہ لگائے گئے پاپولر کی جو ایوریج موٹائی ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت. یہ حفیظ صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ فاصلہ 4x12 کا رکھتے، یعنی پودے سے پودے کا فاصلہ 4 فٹ اور لائن ٹو لائن جو فاصلہ ہے وہ 12 فٹ ہوتا، تو ان پودوں کی موٹائی اس وقت ڈبل ہوتی، یعنی 2 گنا موٹے ہوتے. جو کھیت کے باہر والی سائڈ پہ پودے کھڑے ہوئے ہیں، جن کو پراپر ہوا اور روشنی مل رہی ہے نا، ان کی آپ موٹائی چیک کریں. وہ آٹومیٹیکلی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ کو نظر ہی آ رہی ہے کہ وہ پودا آٹومیٹیکلی بڑا موٹا ہو گیا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو پودا ہے یہ ان سے ڈبل ہے. یہ دیکھیں اس کی موٹائی دیکھیں. یہ کیونکہ باہر والی سائڈ ہے، یہ پوری لائن جو ہے نا یہ موٹائی میں زیادہ ہے. رکھیے گا آپ یہ دیکھیں جی، اور اندر والے جو پودے ہیں وہ سارے کمزور ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ اتنا سا لگا کے دیکھنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں تجربہ ہو گیا کہ اس کا فاصلہ کتنا رکھنا چاہیے، اور تجربے کے بغیر کوئی بھی بات نہیں چلتی ہے. ہم نے تو یہی اس میں سے نکالا ہے کہ اس کے فاصلہ 12 لائن سے لائن 12 ہونا چاہیے تھا، اور پودے سے پودا جو ہے نا وہ 4x4 پہ ہونا چاہیے تھا. تو نیکسٹ ہم نے 2 ایکڑ لگانے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ ہم 1100 پودا لگائیں گے. لائن سے لائن 12 فٹ اور پودے سے پودا 4 فٹ لگائیں گے. اس میں ہم کماد بھی لے سکتے ہیں، آلو بھی لے سکتے ہیں، چھوٹی فصلیں لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی 1 سے 2 سال. اگر ہم اس میں نیپیئر CO5 لگاتے ہیں، یعنی کہ پٹھا جانوروں کے لیے اگر ہم لگاتے ہیں کوئی پٹھے وغیرہ، تو وہ 2-3 سال تک چل جائیں گے، کیونکہ اس کی کٹنگز آتی ہیں 4-5. تو 4-5 کٹنگ جو اگر 2 سال میں ہم لے لیتے ہیں تو ہماری زمین کا اخراجات سب نکل آتے ہیں. باقی یہ بونس میں آپ کو جو ہے نا وہ پاپولر مل رہا ہے. دیکھیں جی، آپ اپنے تجربے کے لیے دیکھیں، یہ جس میں فاصلہ زیادہ ہوا ہے نا، اب وہ فاصلے میں یہ کتنی دور ہیں. ہاں جی، یہ دیکھیں، اس کو آپس میں دیکھ لیں، کمپیریزن کریں. یہ دونوں چاروں ہی موٹے ہیں کیونکہ اس میں فاصلہ زیادہ ہے، اور پھر باہر کی طرف ہے، اور اوپر بھی باہر کی طرف ہے، وہ اس سے بھی موٹا ہے وہ والا. ہاں.
बस ये फ़र्क आता है। जो लोग कहते हैं ना कि हम इतने लगा लें, 4000 लगा लें, वो सब फाउल है। नाज़रीन, जो पॉपुलर आप बाहर वाली साइड पे देख रहे हैं, जिस तरह ये मैं एंड पे किनारे पे खड़ा हूँ, कॉर्नर पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ से खेत शुरू हो रहा है। तो इन पौधों का साइज़, इनकी लंबाई और मोटाई वो अंदर वाले पौधों की निस्बत ज़्यादा है। यानी इनके मोटे भी हैं, पौधे सेहतमंद हैं, लंबाई में भी ज़्यादा हैं। सिर्फ फासला ज़्यादा सिर्फ इस वजह से कि इनका आपस में फासला 4 फीट से ज़्यादा है। और नंबर 2, इनको बाहर सूरज की रोशनी और हवा जो है वो प्रॉपर मिलती है। सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है, पानी के साथ और बाकी चीज़ों के साथ रोशनी भी मिलनी चाहिए पौधों को। जब पौधों में फासला 4 फीट होगा तो फिर अंदर जो है रोशनी इतनी नहीं जाएगी और उससे पौधे सही तरीके से फले फूलेंगे नहीं। ये जो बिल्कुल पहला पौधा है कॉर्नर के ऊपर खेत जहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी आप मोटाई देखें और फिर आपको मैं उससे अंदर वाले पौधों की मोटाई दिखाता हूँ। ये देखें नाजरीन, ये पहली रो का पहला पौधा है। ये हफीज़ भाई हाथ से आपको उसकी मोटाई बता रहे हैं। दोनों हाथों में नहीं आ रहा। ये देखें, दोनों हाथों में ये जो है वो नहीं आ रहा ये मोटाई, क्योंकि तस्वीर में मोटाई का सही अंदाज़ा नहीं होता। जब हाथ से पकड़ते हैं तो फिर आइडिया होता है कि अपने हाथ से वो किस कदर बड़ा है या छोटा है। ये देखें, दोनों हाथों से एक तरफ से हाथ मिला हुआ है और दूसरी तरफ से ये उंगलियां आपस में नहीं मिल पा रही। ये मोटाई है बाहर वाले पौधों की। और आपको अंदर वाले मैं पौधे दिखाता हूँ अभी। जैसे जैसे हम खेत के अंदर जाएंगे, पौधों की मोटाई, उनका जो एवरेज साइज़ है वो अंदर वालों का तकरीबन एवरेज साइज़ तो सेम है, लेकिन ये डिफरेंस है उसमें। ये देखें, वो बाहर वाले पौधे भी आपने देखे, हालांकि एक ही वक्त में लगाए गए ये पौधे हैं, एक ही तरह के पौधे थे, एक ही किस्म के पौधे हैं और इनका एवरेज साइज़ ये आप नज़र आ रहा है आपको। और इसी तरह अभी हम बाहर की वाली लाइन में चलते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, ये हाथ, दोनों हाथों के दायरे में पौधा नहीं आ रहा। ये देखिए, ये पहली लाइन है बिल्कुल। आप जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है, दूसरी तरफ दूसरे खेत हैं। तो ये पहली लाइन में जो पहली लाइन के पौधे हैं उनका, और फिर दूसरी का, और फिर अंदर जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। तो इसकी वजह यही है, जिस तरह के हफीज़ साहब ने बताया है, कि पौधों का फासला जो है वो 4 फीट से ज़्यादा रखना चाहिए। अगर आपने पौधे से पौधे का 4 फीट रख दिया है तो लाइन का फासला 10 या 11 या 12 फीट तक होना चाहिए। इससे आप जो है आपकी फसल भी अच्छी होगी और इसके पॉपुलर के साथ साथ आप दूसरी इंटरक्रॉप्स, इसमें दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। जब फासला 12 फीट होगा तो उसमें हल चलाना आसान होता है फसलों की ग्रोथ के लिए। मैंने इवन के कमाद भी देखा है लगा हुआ, जहाँ पे पॉपुलर लगा हुआ था उसमें कमाद की फसल भी लोगों ने काश्त की हुई थी। ये हमारे भाई हैं यहाँ पे, ये नर्सरी का सारा नर्सरी के स्पेशलिस्ट हैं। और इनका पौधा वगैरह रशीद अहमद, अब्दुल रशीद, हाँ भाई अब्दुल रशीद हैं यहाँ पे, ये नर्सरी के स्पेशलिस्ट हैं। इनकी भी राय लेते हैं कि पॉपुलर के मुताल्लिक जो है वो इनका क्या ख्याल है, इनकी क्या राय है, और ये अपने ख्यालात हमसे शेयर करते हैं। पंजाबी में बात करेंगे, ठीक है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान, की हाल है सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਖੈਰਿयत ਹੈ? शुक्र है अल्लाह दा जी। ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 4 ਫੀਟ ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 4x4 ਤੇ ਹੀ? सर जी ਜਿਹੜਾ 4 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਪੌਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਥੋੜਾ ਵਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਦੀ ਜਲਦੀ।
ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਫਸਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਪੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ, ਸਬਜ਼ੀ, ਛੋਟੀ ਕਾਸ਼, ਕਮਾਦ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ, ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿੰਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੋ, ਮਸੰਮੀ, ਮਾਲਟਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਲਗਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ। ਨਰਸਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ओके सर जी, बड़ी मेहरबानी ओके, अब्दुल रशीद ओके। साहब, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये थे हफीज़ साहब आज हमारे साथ। मैं यहाँ पे आया हूँ डिस्ट्रिक्ट कसूर में, तो इनकी नर्सरी और इनके जो मुख्तलिफ़ जंगलात इन्होंने लगाए हुए हैं पॉपुलर के, वो विज़िट किए हैं हमने। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी ग्रोथ में हैं सारे पौधे, और नर्सरी देख के दिल खुश हो गया है। माशाल्लाह बहुत प्यारी नर्सरी इन्होंने तैयार की हुई है, और अब सीज़न भी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देख लीजिएगा, इनसे रब्ता करके नर्सरी यहाँ से ले सकते हैं। आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप चाहेंगे। से मिलेगी, मर्दान की मुकम्मल वैरायटी मिलेगी। मर्दान से जो पौधा मिलना है आपको, वो आपको इसी यहाँ पे हमारे इलाके में मर्दान वाले रेट पे मिलेगा। बिल्कुल सही हो गया। और जैसा कि आपने पहले सुन लिया और देख लिया, पौधे भी देख लिया आपने, इटालियन, डेल्टा, एवरग्रीन, ये किस्में इनके पास हैं, और जितनी किसी को चाहिए होगी वो ये अवेलेबल करके दे सकते हैं नर्सरी। ऐसे ही है जी। और इस वक्त 40,000 से ऊपर जो है वो पौधा मौजूद है। हाँ, मेरे पास 4 एकड़ नर्सरी है मुख्तलिफ़ इलाकों में, और जिस साइड का कोई बंदा ऑर्डर करेगा मैं उसी साइड से उसको उखड़वा के दे सकता हूँ। मेरा मुल्तान में भी 1 एकड़ है, तो उधर का गाहक जो है उधर से ताज़ा नर्सरी में उखाड़ के देता हूँ। ये नहीं कि 8 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की पड़ी हुई नर्सरी देंगे, सही है। तो उसकी ग्रोथ में भी फ़र्क आता है। तो ये वजह है कि आपको ताज़ा पौधा लगाना चाहिए। सही है। ये जो नर्सरी हमारे पीछे भी है और सामने भी नर्सरी है हफीज़ भाई, ये इस तरह आप पौधा निकाल के देंगे ज़मीन से, या कैसे करते हैं ये? पौधा ज़मीन से निकाल के जड़ समेत देंगे। अगर किसी को कलमे चाहिए तो हम उसको काट के कलमे बना के देंगे, यानी और वो भी तने की कलमे। यानी कोई अपनी बंदा नर्सरी तैयार करना चाहता है, हाँ जी। तो कलम तो सस्ती होगी। कलम भाई, अगर आपने सेहतमंद कलम लगानी है ना, तो 6 रुपये की कलम मिलेगी आपको छांटी करके। बेशक आपको सस्ती मिलती है 2 रुपये में, 3 रुपये में आप लें, लेकिन ये है कि उसकी वारंटी नहीं है कोई। फिर आप कहेंगे जी हमारा ग्रोथ रेट 50% आया है, 60% आया है, तो इसका ग्रोथ रेट मैं इसकी गारंटी दूंगा कि 100% आएगा। ये हमारी कलम की खसूसियत होगी कि ताज़ा और तने की कलम दूंगा, ऊपर से जो है ना वो बारीक वाली कच्ची कलम नहीं दूंगा। तो मशवरा आप क्या देंगे फीस साहब के? कलम लगानी चाहिए अब, चूँकि सीज़न चल रहा है, पॉपुलर की काश्त का लोग लगा रहे हैं, तो क्या कलम लगाएं और फिर वो नर्सरी तैयार करके फिर अपनी काश्त करें, या यहाँ से पौधे लेके आपसे वो अपना ये कारोबार शुरू करें? भाई, जिन्होंने एकड़ के हिसाब से जंगल बनाना है वो तो ज़ाहिर है पौधे ही लगाएंगे, और जिन्होंने नर्सरी तैयार करके अपनी बचत करना चाहते हैं तो उनको 6 रुपये की अगर कलम मिलती है तो ज़ाहिर है 1 एकड़ में 40,000 कलमें लगती हैं, तो ये 2,40,000 की बनती हैं। तो 2,40,000 अगर आप लगाते हैं तो 12-13 लाख रुपए कमा सकते हैं 1 साल में, और मैंने कमाया है, मेरा तो तजुर्बा है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, नर्सरी लगाएं, पौधे निकलते हैं, जंगल बढ़ना ही बढ़ना है। तो जंगलात जो है ना वैसे भी पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। बेशक। हाँ जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। बड़ी और खुशी भाई, इतनी दूर फैसलाबाद से आप आए हैं, हाँ जी। तो हम आपके बहुत ममनून है कि हमने आपकी खिदमत खातर नहीं इतनी कर बड़ी सके। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। हमारा तो ये शौक़ है लोगों तक मुफीद मालूमात पहुँचाना अपने चैनल के ज़रिए। हाँ जी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। और ये मालूमाती वीडियोस आपके लिए बड़ी मेहनत और मशक्क़त से बनाई जाती हैं, तो आपको चाहिए कि इसको जो है ना वो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो हफीज़ साहब से इजाज़त चाहते हैं। जी शुक्रिया जनाब। आप बड़ी खुशी हुई हफीज़ साहब आपसे मिलकर, और आपका जंगल भी देखा हमने पहले, और अब आपकी नर्सरी देख के माशाल्लाह दिल खुश हो गया है। चलें, ये पाकिस्तान और हमारा पंजाब लहलहाता रहे ऐसे ही सब जंगलात से और फसलों से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।